very fundamentals of signals and systems. So what I'll do is I'll just share my screen with you, and let me know if my screen is visible, so that I get some kind of acknowledgement. And if my voice breaks up in between, please let me know then also. So yeah, I have now shared my screen. Hope my screen is visible. Are you able to see my screen, guys? Yes, Are you sir. able to see my screen? Yeah, yeah. Okay, good. So see, what I'm going to do here is I'm going to cover some fundamentals. Okay, first of all. So these fundamentals, you don't need to know anything as such, but this fundamentals is going to help you in building some concepts initially, and then we may then work towards some problem solving skills. So first of all, regarding signals and systems, I'll quickly go through the importance of this course for the gate examination. Okay, so you may be aware of this gate. I'm not going to go through it. It's like eight IITs that are conducting this, including IISCs. So it's a kind of the motivation. Biggest motivation is regarding the jobs. Okay, it offers a lot of jobs based on that. In the public sector union, or maybe if you want to pursue your higher studies, you can directly go for your PhD. Right after your bachelor's, you can register for your PhD. Okay, using the gate. If you are very well qualified, gate score is very high, you can directly go for registration of PhD, right? So these are some of the motivations that I would like to tell you regarding this gate and all. So for that, you need to focus on this 9 to 11 core subjects that are there. And talking about these jobs, there are various PSUs, as I said. There is a Bharat Heavy Clear. You might have heard about it, BHEL, this Gas Authority Limited. These are all public owned Navratna companies. Okay, so these companies, you might have gone through some advertisements in the paper also. This Indian Oil, NPCL, and all, they all recruit through this GATE examination. And now the GATE is international. It's for Sri Lanka, Malaysia, and some countries. They also have GATE centers to give the exam. More details, you can just go through the brochure, and you will get all the details. This was regarding this 2021, which was conducted by IIT Bombay. But 2022, I think that Kharagpur or Roorkee may be conducting that. Okay, it keeps on changing IIT wise. So this typical gate exam pattern, you may be aware, but still I would like to go through that. So mainly we need to focus on this technical, because this 15 marks is like a general aptitude, and this 25 marks. Okay, this this 1 mark questions and 2 mark question totally, this 85 marks. These are all technical questions, and these technical questions are then divided into this 9 to 11 subjects, and the signals and systems being the most important. Okay, again, I won't say that the other courses are not that important. Almost the distribution is somewhat similar. Okay, you may consider the overall weightage, for example, from 9 to 11 marks. Okay, that overall weightage for gate for signals and systems would be around 9 to 11 marks. So in that sense, you can just make yourself prepared. Now, if you look at the subject wise weightage, okay, for this signals and systems, you may see that, okay, year wise it is, okay, you can see the year wise weightage. Sometimes it is 6, as low as 6, sometimes it is as high as 12. Sometimes the questions are overlapping, meaning some questions may be taken, may be considered as signals and systems, the same may be considered as communication or analog communications. And if you look at the scores, if you look at the cutoffs, okay, if these are the subjects, let's say for example, on an average we may consider 8 to 10 marks. Okay, in order to just qualify gate, you just require preparation of 2 courses. Suppose you somehow make through all the questions of signals and systems, then only one more course, okay, perfectly you need to prepare in order to just qualify the gate examination. So if you look at the cutoffs, okay, if you look at the cutoffs here, okay, let's look at the highest or the latest cutoffs here. If you are in the category, okay, if you belong to some reservations, take advantage of it. Okay, you can just go for this, because the cutoff there is very low. Okay, in the gate, the cutoff for the reserve, CST and PWD candidates, it's quite low, and take the advantage of it. It's Constitution of India, so, right? So you can just go for this. 19.2 is as low as, as compared to this unreserved and OBC. You can see that it's still low, like only 30 marks or 28 marks are required, or 25 marks are required
to just qualify the gate examination. But again, it is very important to know that only the qualification merely is not important. You may be able to qualify the gate, that may be the very first or basic aim, but the aim should be to excel in the gate examination, and that you can do only by clearing your fundamentals. Okay, so that's fundamentally you should be very strong, and that's what we're going to do that in these 2 hours of session. Let's see how far we can go. So this is like a typical syllabus of gate signals and systems. You can see that there are continuous and discrete systems, signals and systems, and its periodicity is there, then periodicity, and then impulse signal, and so on. Some of these, like, they also have to cover some, some part of signal processing, that is like FIR and IR filter. So I think they have modified somewhat in this here and there, but most of the things are kept intact. So what we are going to do is let's focus on some simple things. Okay, in this 2 hours, let's try to cover the max. Let's try to make maximum out of it. Okay, now like subject like analysis, course wise analysis, that I'm not going to cover. I'll just keep that, and let's start with very fundamentals. Okay, now I'm not going to start with a boring definition of signal and all. Okay, signal is something that is intended, that is a kind of a you can consider that as a kind of a variable mapping. Okay, so I wouldn't be doing that in general. So it's an attempt to communicate, you can say. I'm attempting to communicate with you. That's a signal with this voice. So voice is an example of a signal. You can there are various such signal. That's a one-dimensional signal. The photograph that you are seeing on the screen, okay, the signal or the image that you are seeing on your screen is a signal. It's a two-dimensional signal. Okay, one on the horizontal axis and the vertical axis. Each of these pixels are varying. So in general, you can think that signal as a variable of one or more independent variables. So it's a function, basically. Consider this as a function of one or more independent variable. So basically it's a function. It's a karta. Okay, is there anyone who doesn't know Hindi here in this session? Is everyone okay with Hindi? I may use some words of Hindi just because to emphasize some parts more in Hindi. So everyone is comfortable with Hindi? Yes, Is there sir. anyone? Yeah, okay. Yes, sir. So is it okay, like somewhat like I can just speak in English, Hindi? Okay, mix. Yes, sir. या सो ये सिग्नल जो है, ये कार्य है कि दिस इज फंक्शन ऑफ किसका, एक या फिर दो या फिर तीन या फिर इनफाइनाइट वेरिएबल्स का. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, फॉर एग्जांपल मेरा सिग्नल जो है वॉइस सिग्नल, आप अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, इफ यू लुक एट द वॉइस सिग्नल इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग हेलो, सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस व्हाटएवर हैज बीन शोन ऑन द स्क्रीन. तो ये क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये फंक्शन है, सिग्नल जो है ये फंक्शन है. फंक्शन क्या करता है, टाइम के हिसाब से वैल्यू बदल रहा है, ये वक्त के हिसाब से ये वैल्यू बदल रहा है. सो फंक्शन of some variable that is time. So this is like this becomes a function of time. That's what is the amplitude. So let's say for example x is equal to f of t is the signal. It changes with time. It's a function of time. So ये बन गया इसका independent variable. Independent variable. वक्त जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. It's an independent. It's moving independently. It is not dependent on anyone. But the signal itself is dependent on this independent variable time. So ये बन गया dependent variable. Signal is dependent on one or more independent variable. What is that independent variable? यहाँ पे time is a independent variable. So मैं जैसे बात कर रहा हूँ voice signal, ये voice जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें what is the independent variable? Time, because with time it is changing. Simple. Okay. तो ये बात कर रहा था मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डोमेन भी बोलते हैं. हम बोलते हैं ना टाइम डोमेन का सिग्नल है. इट्स अ टाइम डोमेन सिग्नल. टाइम डोमेन मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेंट, जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ रेंज. रेंज मतलब ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे कितने वैल्यूज ले पा रहा है, व्हाट आर द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट इट इज टेकिंग, इज कॉल्ड एज अ रेंज. और ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये डोमेन हुआ, डोमेन ऑफ वैल्यूज. टाइम का डोमेन, डोमेन बोल तो इलाका, टाइम का इलाका है यहाँ पे. सिंपल. तो क्या हुआ, सिग्नल का सिंपल डेफिनेशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि सिग्नल जो है इट कैन असाइन ओनली वन वैल्यू
टू ईच वैल्यू इन अ डोमेन। मतलब यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई भी सिग्नल पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, ये वक्त पे सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। ओके, ये वक्त पे सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, ये पॉइंट पे सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, उसी को हम सिग्नल बोलेंगे। अगर एक वक्त पे दो दो वैल्यूज है तो उसको हम सिग्नल नहीं बोल सकते। इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्राफ सिंपली। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ऐसा प्लॉट कर रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं एक सिग्नल, एक जो है एक ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहा हूँ, ऐसे लेट से मान लो, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ देखो, एक तो वक्त पे दो दो वैल्यूज है, एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये सिग्नल नहीं खिलाएंगे, दिस इज नॉट अ सिग्नल। कोई भी सिग्नल आप ऐसे ऐसे, अगर मान लो कि मैंने एक सिग्नल ड्रॉ किया एक से, है ना, ऐसे ड्रॉ किया, तो ये सिग्नल है क्या? ये सिग्नल नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक वक्त पे दो वैल्यूज कभी नहीं हो सकती है, एक टाइम इंस्टेंट पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये बन गया सिग्नल। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ओनली वन वैल्यू इज असाइंड टू ईच वैल्यू इन अ डोमेन। ठीक है, तो देखो, मुझे डेफिनेटली पता है कि इस हिसाब से आपको नहीं पढ़ाया होगा, या फिर पढ़ाया भी होगा तो दीज आर द इंट्रिकसीज दैट माइट हैव लेफ्ट अनअटेंडेड। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस कवरिंग दोस फंडामेंटल्स इज इंपॉर्टेंट। अभी आपको सिग्नल्स के बारे में पता हो तो इतनी गहराई से आपको पता होना चाहिए, है ना, सिंपल चीजें। एग्जाम्पल बताइए, कोई भी बता सकता है, y ऑफ t इक्वल्स टू t, ये हमने सिंपल सा ग्राफ प्लॉट किया। कोई बताएगा यहाँ पे, कोई ये सिग्नल है या नहीं है? कौन बताएगा ये सिग्नल है या नहीं है? इज इट अ सिग्नल? कौन बताएगा फटाफट? कोई भी अनम्यूट करके बता दो फटाफट। इज इट अ सिग्नल? Yes, sir. It's a signal. Okay, you speak your name and then say, okay, Ankit, this side. My answer is this. This is a signal. Yes, something like that, so that I can get a feedback. Okay. So yeah, it is a signal. Why? Why it is a signal? Because at one instant it has only one value, isn't it? Can anyone tell this? It is not a signal, isn't it? So because it has having two values, as I said here. इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स से अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो y of t equals to under root of t could be, could not be a signal. Okay, this is simply a graph. That's it. तो ये हो गए कुछ फंडामेंटल्स, और हम आते हैं फिर अभी बुक्स के ऊपर, है ना। देखो, तो 2 घंटे का लेक्चर ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा, इतना नहीं रहेगा, आपको बस टच मिलेगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कंटिन्यू करना, है ना। सिग्नल सिस्टम की पढ़ाई जो है आपको कंटिन्यू रखनी है। देन वी हैव टू फोकस ऑन सम टेक्स्ट बुक, वी हैव टू रिलाई ऑन सम टेक्स्ट, हैव टू रिलाई ऑन सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टेक्स्ट प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। फॉर दैट यू मे रिलाई ऑन दीज 3 बुक्स। मैं आपको बोलूंगा कि आप एज अ स्टूडेंट है, मेरे पास वो सॉफ्ट कॉपीज भी है इसकी, वी कैन जस्ट शेयर सम लिंक्स। सो दीज टू आर मस्ट। ओके, दीज आर सम recommended text I would tell, signals and systems by OpenM। देखो, फिरंगी ऑथर्स को घबराना नहीं है, है ना। फॉरेन ऑथर्स जो है बहुत बढ़िया ऑथर्स है। आप इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम, एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, उसके उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये खुद, कई बार हम एज ए स्टूडेंट जो है, एज ए स्टूडेंट हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स तो ठीक है हम सॉल्व करते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमें हेल्प लगती है सॉल्यूशंस की। हमको सॉल्यूशंस में हमको कॉन्फिडेंस देना होगा कि आंसर तो बता दो, हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशंस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो इस किताब में मिल जाएंगे, शॉम सीरीज में। शॉम्स आउटलाइंस, दिस इज काइंड ऑफ अ सीरीज फ्रॉम टाटा मैग्रा हिल, वो बहुत फेमस है सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करने के लिए। सो इट हैज 9 10 सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए ये दुख बुक्स जो है वो आप रेफर कर सकते हैं, और डीएफटी वगैरह का जो पोर्शन है वो फिर प्रोकेस से आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करना। आपने सिग्नल का कॉन्सेप्ट देखा, है ना। उसके बाद कुछ बुक्स देखी जो आप पढ़ सकते हैं इसके बाद में। उसके बाद कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी है, आप देख सकते हैं। ओके, ये मेरे गुरु के हैं, तो ये एडेक्स पे भी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स है। अगर आपको एडिशनल मटेरियल पढ़ना है तो आप ले लीजिए, आपके पास वक्त कम है, बुक रेफर कीजिए, आपके पास काफी ज्यादा वक्त है। तो आप जैसे अभी नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन आ चुका था,
ना, इसका गेट का। तो आप अगर अभी स्टार्ट जोरदार जो है आपने तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू कैन गो हेड। ओके, यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन फंडामेंटल्स, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर प्रैक्टिस पे बढ़ जाओ। और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ किताबें लगेगी। आप एमसीक्यूज की कोई भी किताब पकड़ लो। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस 28 साल के जो पेपर्स है उसमें आपको मिल जाएंगे, पियर्सन की जो गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आपको ये मिल जाएगी। आप ये फिर रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंपनी के आप रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ मेरे भी लेक्चर्स है यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन जस्ट रेफर देम। और कुछ अकेडमी पे भी मैंने कुछ लेक्चर्स जो है 20-30 लेक्चर्स डिलीवर किए थे। अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा है। बट देन यू कैन जस्ट गो अहेड with the lectures that are there on YouTube also as well. Okay, there are some signals and systems lectures available. उसके बाद भी I'm not saying that you should just refer to me. You can just go through any lectures that you feel that concept important is the concept. Okay, concept आपका clear होना चाहिए बस। ओके, सो अभी ये होगी क्लियर बात सिर्फ सिग्नल्स की। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। देखो, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो है, सिग्नल्स हम बोलते हैं, सिग्नल्स का हमने डेफिनेशन अभी देख लिया। अब सिग्नल्स जो है इटसेल्फ हैज वेरियस टाइप्स। ओके, हम क्विकली ये कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम फटाफट भागेंगे। ठीक है, अभी कुछ जो है आधा घंटा हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स ब्रश कर रहे हैं। तो अभी कौन से है ये सिग्नल्स के टाइप? जैसे मान लो कि आपने थर्मोमीटर ले लिया, जो ये जो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट फंडा ये थर्मोमीटर जो आता था सबके घर में मिलता था, ये सिंपल वाला जो अंडर आर्म्स रहते थे, या फिर इन योर माउथ, इफ दे यूज्ड टू जस्ट कीप इट फॉर सम टाइम एंड देन यूज्ड टू मेजर द टेंपरेचर। दिस इज काइंड ऑफ एन एनालॉग काइंड ऑफ अ थर्मोमीटर। तो उसमें अगर मैं टेम्परेचर एक रूम का आपकी आपके आपका टेम्परेचर अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है हर मोमेंट पे आपको वैल्यूज आ रही है। एक पॉइंट पे भी, इस पे भी वैल्यू है। हर हर सिग्नल पे, हर नो मैटर हाउ दिस स्मॉल इंटरवल इज, no matter how small this interval is, you always have a value in between that interval. So the value is available at each and every time, and these values itself are also in continuous. मतलब आपको अगर 27.125 अगर ये वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो दूसरी वैल्यू जो है अलग प्रिसीजन पे मिल सकती है, 28.9395। तो इसका प्रिसीजन का कोई लिमिट नहीं है, as long as we can just perceive that. So the amplitude is continuous, that means it is available in continuum। मतलब क्या, हर टाइम पे अवेलेबल है और हर वैल्यू अवेलेबल है एक रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज में हर वैल्यू हमें अवेलेबल है। तो ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं हम कंटिन्यूस टाइम और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल्स। ठीक है, अब मान लो कि ये वैल्यू जो है हमने टेम्परेचर की वैल्यूज हर टाइम पे ना होते हुए हमने सिर्फ हर 1 घंटे बाद ली। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने ये इस वक्त वैल्यू ली, फिर ली, फिर 1 घंटे बाद ली, फिर 1 घंटे बाद ली, एंड सो ऑन। तो दीज आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट टाइम बट कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड सिग्नल्स। यहाँ पे टाइम डिस्क्रीट है कि वक्त जो है वो डिस्क्रीट है। वी हैव टेकन द टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, लेट्स से 2 आवर, डायरेक्टली 3 आवर, एंड सो ऑन। सो टाइम हैज बीन डिस्क्रीट बट द एम्पलीट्यूड इज स्टिल कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो वैल्यूज थी, जो 28.1235 है, वो वही प्रिसीजन के हिसाब से अपने को दूसरी वैल्यू भी मिल सकती है। हियर देयर इज नो लिमिट on the precision of the values that are there on the vertical axis, है ना। तो ऐसे सिग्नल्स को हम बोलेंगे डिस्क्रीट। टाइम डिस्क्रीट है पर एम्पलीट्यूड अभी भी कंटिन्यूअस है। ओके, अभी दूसरे टाइप के थर्मामीटर पे आते हैं, ये डिजिटल टाइप के, है ना। ये डिजिटल टाइप के थर्मामीटर जो है, इनमें खास बात ये होती है कि आपको प्रिसीजन बराबर प्रॉपरली देता है। आप मुझे कोई भी हेजी वैल्यूज मत बताओ, आप ये क्या बोलेंगे कि 36.6, अगर ये 36.6 है तो ये डायरेक्टली 36.7 या फिर 8 हो सकता है। इन दोनों के बीच में आपको वैल्यू नहीं, क्योंकि इसका 0.1 डेसिमल का इसका इसका प्रिसीजन है, 0.1 डेसिमल प्रिसीजन है इसका। तो ये 36.12935 इस टाइप की वैल्यूज इन बिटवीन ये थर्मोमीटर नहीं दे पाएगा। दिस थर्मोमीटर कांट गिव द वैल्यू इन बिटवीन सम डिस्क्रीट इंस्टेंस ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिस्क्रीट है, पर सिग्नल जो है हॉरिजॉन्टली वो तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हो गया कंटिन्यूअस टाइम बट डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल। उसी हिसाब से चौथा टाइप आता है दोनों डिस्क्रीट।
टाइम भी डिस्क्रीट है और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल। और ऐसे सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स भी बोलते हैं। जहाँ पे दोनों डिस्क्रीट है उन सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स भी बोलते हैं। मेनली डिजिटल सिग्नल्स का वो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं, एनालॉग क्या है डिजिटल क्या है। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं बता देता हूँ। कंपैरिजन के हिसाब से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे द अपोव वैल्यूज, ओके, दीज आर ऑल एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग और डिजिटल ये जो कॉन्सेप्ट है ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से है। ओके, ओके, एनालॉग और डिजिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये एम्पलीट्यूड के हिसाब से। तो ये ऊपर के जो है ये एनालॉग सिग्नल्स, दीज आर बोथ एनालॉग सिग्नल, दिस इज एनालॉग सिग्नल, ये भी एनालॉग है। राइट हैंड साइड वाला ये भी एनालॉग है, इसमें बस टाइम डिस्क्रीट है, विद डिस्क्रीट टाइम है, ये कंटिन्यूअस टाइम है, दैट्स इट। नीचे के जो सिग्नल्स है वो है डिस्क्रीट, या फिर वो डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं इसको, डिजिटल सिग्नल्स। ये डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट है, तो ये भी डिजिटल है और ये भी डिजिटल है। डिजिटल का जमाना है। डिजिटल में आपको ये ध्यान में रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्क्रीट इंस्टेंट्स में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है डिस्क्रीट इंस्टेंट्स में, बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यूज है, तो ऐसे सिग्नल्स को हम बोलेंगे डिस्क्रीट, सॉरी डिजिटल सिग्नल्स। इट मे बी कंटिन्यूअस टाइम, इट मे बी डिस्क्रीट टाइम। ओके, ऐसे चार टाइप के हम सिग्नल्स देखे। तो यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी है, यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? इज ऑल ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट। Yes, sir. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो यू कैन जस्ट पॉज मी, ओके। नाउ अभी कुछ हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज पे। हमारे पास 2 घंटे, 2 घंटे में जितना अच्छे से पढ़ना होता है उतना अच्छे से पढ़ते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक सिग्नल है ना, कुछ उसके बेसिक ऑपरेशंस हम दिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही बेसिक ऑपरेशंस। अभी मान लो कि ये सिग्नल जो है ये दिया हुआ है, दिस इज अ गिवन सिग्नल, लेट्स से एक्स ऑफ टी। यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट, एक्स ऑफ टी ये सिग्नल दे रखा है ना, एक्स ऑफ टी। अगर मैंने उसको ऊपर खींचा, मान लो कि उसको 1 यूनिट से ऊपर किया, तो उसका क्या हो रहा है, हर एक वैल्यू, हर एक सिग्नल की हर एक वैल्यू पे 1 यूनिट ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे हर एक वैल्यू जो है वो 1 यूनिट ऐड हो गया, हर एक वैल्यू को 1 यूनिट ऐड हो गया, है ना। पहले ये सिग्नल नीचे था, ये ऊपर हो गया, तो हर एक वैल्यू का, दैट मीन्स एक्स ऑफ टी के हर एक वैल्यू को 1 यूनिट ऐड हुआ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज अ न्यू सिग्नल। एक्स ऑफ, ये एक्स ऑफ टी है तो लेट्स से वाई ऑफ टी हो गया है। वाई ऑफ टी क्या है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक्स ऑफ टी ही है, पर ये पूरा का पूरा सिग्नल जो है 1 यूनिट से ऊपर चला गया, +1। समझ गए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी +1। यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि यहाँ से जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे। अभी देखो यहाँ पे, वैसे ही अगर मैं वो सेम सिग्नल को अगर मैं नीचे खींचता हूँ लाइक दिस, इसको हम कैसे लिखेंगे, बता सकता है कोई? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज जेड ऑफ टी। कौन बताएगा? देखो पूरा का पूरा सिग्नल नीचे चला गया है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको? Y of t, हम्म, y of अच्छा, t is equal to x of t minus 1. okay, good, very good. So it is y of t. So instead of y of t, I'll just write it as z of t in order to avoid confusion. I'll write it as x of t minus 1, isn't it? Now, if I have to write this in terms of y of t, who will tell? y of t के terms में कैसे लिखेंगे इसको? z of t equals to, बताओ? If I need to write it in terms of y of t, who will tell? y of t क्या आएगा? -1 sir. -2. Yes, -2, not -1, -2, है ना, 2 यूनिट नीचे। वाई ऑफ टी को देखो यहाँ पहले, ये यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया, है ना। तो अभी ये आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया। अभी जब ऊपर नीचे सिग्नल जाता है, अब हम बताएंगे फंडास। देखो ये जो है ना, ये पूरी की पूरी क्लास फंडा के ऊपर है ना, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के फंडेस बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, लाइफ टाइम याद रखोगे। सिग्नल अगर ऊपर नीचे आ रहा है ना, कोई भी सिग्नल ऊपर नीचे दिखा, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चेंज होगा ना वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, पूरे के पूरे सिग्नल पे चेंज होगा, पूरा का पूरा सिग्नल प्लस समथिंग माइनस समथिंग ऐसा होगा। अगर सिग्नल ऊपर नीचे आ रहा है तो सिग्नल में जो चेंज होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे होगा, पूरे पूरे सिग्नल को प्लस और माइनस होगा। ओके, अब दूसरे यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में ले रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं उसको, ये ओरिजिनल सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये सिग्नल क्या है, एक्स ऑफ टी है। अभी मान लो कि हमने उसको दुगना बढ़ा दिया। मान लो कि ये यूजुअली ऑपरेशन होता है,
हमारा एम्पलीफायर्स में। जैसे मान लो कि आपको मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, हम एम्पलीफायर लगाएंगे, हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, सिग्नल उतना ही है। देखिए यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, सुनाई नहीं आ रही है आवाज, तो आप क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो मान लो कि 2 घंटे का वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो जो है वो रहेगा उतना ही, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। उसका जो वॉइस वॉइस का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो वो कैसे लिखेंगे हम, देखो इसको कोई बता सकता है कौन कैसा लिखेगा ये, कैन एनीवन टेल, लेट मी सी, कैन एनीवन टेल। मान लो कि ये नया सिग्नल है y ऑफ t, इसको मुझे x ऑफ t के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे बताओ। x of t plus 2. x ऑफ t प्लस टू, अगर वो प्लस x ऑफ t प्लस टू अगर आप लिखोगे तो वो तो ये बन गया, मतलब ये ऊपर और नीचे पूरा का पूरा सिग्नल चला गया। ये पूरा का पूरा सिग्नल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, उसका हर एक वैल्यू जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। देखो, तो हम कैसे लिखेंगे, मेरी बातों की तरफ ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x ऑफ t प्लस अगर 2 हम लिखते हैं, है ना, आप नाम बताओ, है ना, आप अगर नाम बताओगे तो मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा, है ना। देखो यहाँ पे ये सिग्नल जो है, अगर मैंने x ऑफ t प्लस 2 लिखा तो ये सिग्नल ऐसा बन जाता है ना, ऐसा बन जाएगा। देखो x ऑफ t प्लस 2 ये ऐसा बन जाता है ना, सिग्नल जो है ये ऐसा बन जाएगा, प्लस 2 वाला। और ये सिग्नल ऐसा है क्या, ये 2 पे, ये सिग्नल ऐसा है क्या, नहीं है। तो ये x ऑफ 2 नहीं हुआ, x ऑफ t प्लस 2 तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये क्या है बताओ, कोई कौन बताएगा बताओ। मैंने आपको हिंट दे दी, हिंट क्या है, हर सिग्नल को, हर एक वैल्यू को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बताओ क्या होगा ये, कोई बता सकता है। 2 multiply 2xt. x of t. वेरी गुड, एक्सलेंट, अभी आपकी सोच जो है ना प्रॉपरली हो रही है। देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ टी, है ना, ये Yes, sir. ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ टी है। अभी देखो, कभी भी डाउट रहा ना तो एक एक करके वैल्यू डालो। देखो देखो यहाँ पे एक पे वैल्यू, एक पे वैल्यू कितनी है, 2, है ना। तो दो के यहाँ पे एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी, 1। ये 1 वैल्यू जो है ना इसमें डालो, 1 अगर वैल्यू है, 2 इंटू 1 1। ओके, तो कोई भी पॉइंट पे चेक करके देख लो कि ये वाई ऑफ टी की वैल्यू जो है हर एक पॉइंट पे जो है वो कितनी आ रही है, खत्म, वैल्यूज डाल के देख लो, है ना। अब ये कौन बताएगा, देखो यहाँ पे देखो, जेड ऑफ टी ये क्या आएगा, हमको लिखना है इन टर्म्स में एक्स ऑफ टी के, क्या आएगा बताओ, सिंपल वे में, जेड ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी के टर्म्स में बताओ, एक्स ऑफ टी के टर्म्स में ये क्या आया। सिग्नल वही है, उसका हर एक का एम्पलीट्यूड जो है वो आधे से स्केल हुआ है। तो क्या हुआ बताओ, व्हाट इज इट। 0.5 xt. यस, एक्स ऑफ टी बाई 2 और 0.5 टाइम्स एक्स ऑफ टी, वेरी गुड, है ना। सिंपल, काफी सिंपल है। देखो जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ऑल द ऑपरेशंस अबव, आई मीन ओवर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओवर द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, सॉरी वर्टिकल एक्सिस ओवर द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर नीचे हम मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, देखो पहले मैं सिर्फ पूरा का पूरा सिग्नल जो है मैंने शिफ्ट किया था, उसका शेप चेंज नहीं किया था। ओके, हियर आई एम चेंजिंग द शेप इटसेल्फ, आइदर आई एम एम्पलीफाइंग और आई एम लोअरिंग और आई एम श्रिंकिंग इट, एटेन्यूएटिंग, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। इसका फंडामेंटल जो है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है ये एम्पलीफायर्स में यूज होता है ना, एम्पलीफायर में यूज होता है। ये जो है ये नॉइज कैंसलेशन में यूज होता है, एटेन्यूएशन में यूज होता है, एंटीना में यूज होता है ना, आपको अगर सप्रेस करना है तो इसको अगर वॉल्यूम आधे से, बहुत बहुत चिल्ला रहा है एक इंस्ट्रक्टर, जैसे मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ, बहुत आपको इरिटेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम कम कर दोगे, आधा वॉल्यूम कर दोगे। तो इसको ये हुआ एटेन्यूएशन, इसको बोलेंगे एटेन्यूएशन, है ना। सिग्नल वही है, आपने वॉल्यूम कम कर दिया, सिंपल सिंपल। अभी हम इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, है ना, थोड़ा सा खेलते हैं। सब लोग जो है अपनी कॉपीज जो है ना पेन और पेपर के साथ रेडी रखिए, है ना, पेन और पेपर के साथ रेडी हो आप, इज एवरीवन रेडी विद पेन एंड पेपर, रेडी रखो, क्योंकि कैसा है कि उसके अलावा फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। पेन एंड पेपर ले लो फटाफट, क्योंकि क्या है कि अगर वो नहीं लोगे ना तो आप सीख नहीं पाओगे। ले लो पेन एंड पेपर, ले लो फटाफट। हेलो, या एम आई ऑडिबल, Yes, sir. या Yes, पेन एंड sir. पेपर ले लिया आपने,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो अपन एक्टिविटी करने वाले हैं। ये सिग्नल ड्रॉ करो, ठीक है, कितना सिंपल सिग्नल है। ये सिग्नल्स ड्रॉ करेंगे, ये सिग्नल के हिसाब से ये सिग्नल ड्रॉ करेंगे। देखो पहला तो काफी इजी है, पहला अपन ने देख लिया। ड्रॉ करो फर्स्ट सिग्नल एक्स ऑफ टी प्लस थ्री, एक्स ऑफ टी प्लस थ्री ड्रॉ करो। सॉल्यूशन बताऊंगा फिर। ये तीन सिग्नल्स ड्रॉ करने हैं, एक्स ऑफ टी प्लस थ्री, माइनस टू ऑफ एक्स ऑफ टी। और इसमें ये चैलेंजिंग है, ये जो कर पाएगा सबसे बेस्ट, ओके, वो तो मतलब उसको ये कॉन्सेप्ट समझ गया। ड्रॉ करो, I'll give some minute, okay, I'll give some time। x of t प्लस थ्री, देखो इसका क्या बोलना है कि x हर एक वैल्यू को तीन से ऐड करो, मतलब क्या, सिग्नल जो है तीन से ऊपर शिफ्ट करो। तो ये सिग्नल कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। किस किसने ड्रॉ किया ये, गॉट इट करेक्टली। x of t प्लस थ्री पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो तीन यूनिट से शिफ्ट हुआ है, देखो तीन यूनिट से शिफ्ट हुआ है। अभी ये देखने दो मुझे, ये कौन सही तरीके से करता है, इसमें काफी मिस्टेक्स होती है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, माइनस टू टाइम्स एक्स ऑफ टी, माइनस टू टाइम्स एक्स ऑफ टी, एनीवन। माइनस टू टाइम्स एक्स ऑफ टी, देखो कैसे प्लॉट करना है। माइनस टू टाइम्स एक्स ऑफ टी, सबका देखो ऐसा है। देखो मैं सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ। हर एक एम्पलीट्यूड माइनस टू से मल्टीप्लाई हुआ है ना, दिस इज द Yes, आंसर sir. इट इज। नीचे. Yes. ओके वेरी गुड, सो माइनस टू टाइम्स एक्स ऑफ टी ऐसा है। अभी तीसरा बहुत ही चैलेंजिंग है, देखो मतलब थोड़ा सा सिंपल सा है पर सही है। आपको एम्पलीट्यूड वाइज स्केल भी करना है और शिफ्ट भी करना है, एम्पलीट्यूड वाइज स्केल भी करना है और शिफ्ट भी करना है। पहले स्केल भी करना है और शिफ्ट भी करना है। देखो ऐसा आएगा, कैसे आएगा, कोई बताएगा। देखो ये तो जवाब मिल गया अपने को, है ना, माइनस टू ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ टी, ये तो जवाब मिल गया हमको, है ना, क्योंकि ये हमने यहीं पे कैलकुलेट किया है सेकंड पार्ट में। उसको बस तीन से शिफ्ट करना है ऊपर में, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा। देखो सिग्नल ऐसे होगा, देखो ये एक्स ऑफ माइनस टू आइस ऑफ एक्स ऑफ टी ये हुआ, इसको हमने प्लस थ्री से अप शिफ्ट किया, प्लस थ्री से अप शिफ्ट किया, मतलब क्या, ये माइनस टू तो आ गया यहाँ पे जीरो पे, और एक मतलब वन पे आ जाएगा ये। तो दिस सिग्नल इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक दिस। इज इट ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ गया सबको। Yes, sir. गुड। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़े से डिफिकल्टीज आ सकती है, काफी लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि कभी मैं स्केल पहले करूँ या शिफ्ट पहले करूँ या क्या। तो हमेशा आपने ध्यान देना चाहिए कि पहले जो है, पहले एक्टिविटी क्या हो रही है, एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी को क्या हो रखा है पहले, पहले तो हमने शिफ्ट नहीं किया। अगर हमने पहले शिफ्ट किया होता और फिर स्केल किया होता, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। पहले हमने स्केल किया और फिर शिफ्ट किया अबव, है ना, एम्पलीट्यूड वाइज हमने पहले स्केल किया और फिर शिफ्ट किया। दैट इज द डिफिकल्टी दैट स्टूडेंट यूजुअली फेस, है ना, कभी कई बार वो डिफिकल्टी जो है वो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सो यू हैव टू बी देन वेरी साउंड वाइल द ऑपरेशंस, ओके। अब इसमें भी थोड़े से बाकी चीजें हम देखेंगे, अभी नहीं। तो हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं, सिंपल ये टॉपिक कवर हो चुका है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। गुड, so we have covered this, okay, now, okay। ओके, सो ये कवर हो चुका है। नाउ आई एम गिविंग यू सर्टन सिग्नल्स, ओके, आई एम गिविंग यू सर्टन सिग्नल्स।
अभी हमने जो भी एक्टिविटीज देखी वो अप एंड डाउन देखी, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे देखी है। अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ एक्टिविटीज हम देखेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मतलब अब हम शिफ्ट कर रहे हैं सिग्नल टू ऑन द टाइम डोमेन। ओके, वी आर चेंजिंग, वी आर शिफ्टिंग द सिग्नल्स इन द टाइम डोमेन। ओके, तो ये जो सिग्नल है, मान लो कि एक्स ऑफ टी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। देखो ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड पे। कहाँ पे शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड पे, है ना। तो मतलब मान लो कि ये सिग्नल है, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, इट हैज बीन डिलेड। देखो ये सिग्नल जो है, हमेशा ये टाइम एक्सिस पे ध्यान देना है, ये टाइम एक्सिस पे ध्यान देना। तो ये अगर राइट शिफ्ट हुआ तो इट हैज बीन डिलेड। व्हाई इट हैज बीन डिलेड, assume that this is a signal kind of you are playing a song, और प्लेइंग अ सॉन्ग मतलब जो राइट से लेके लेफ्ट में आ रहा है टुवर्ड्स द जीरो, दिस इज द ओरिजिन। ओके, दिस इज द ओरिजिन। ये सिग्नल जो है यहाँ से प्ले होगा, जीरो से प्ले होगा। तो अगर मान लो कि आपने पहले गैप दे दी 1 सेकंड की, तो वो 1 सेकंड बाद प्ले हो रहा है। ओके, इट इज प्लेइंग आफ्टर 1 सेकंड। ओके, दिस सिग्नल इज गेटिंग प्लेड आफ्टर 1 सेकंड। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑफ, वो एक्स ऑफ टी ही है, बट इट इज अ डिलेड वर्जन, टाइम हैज बीन डिलेड बाय 1 unit, so we can represent that with x of t minus 1. ओके, दिस हैज बीन शिफ्ट। और कई बार यहाँ पे डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को ऐसे होते हैं कि हमने तो राइट में शिफ्ट किया, तो वो x of t प्लस होना चाहिए। नो, इट इज x of t minus 1। एज यू कैन सी हियर, x of t जो है, न्यू वैल्यू जो है, इट इज x of t minus t। दैट मीन्स t minus 1 को अगर मैं टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं, तो t क्या हुआ, टाउ प्लस 1, isn't it? So जो भी इसकी वैल्यू आ रही है वो प्लस पे आ रही है। t, करंट वैल्यू ऑफ t, इट इज टाउ प्लस 1, ये वैल्यू प्लस 1 पे आ रही है। दैट्स व्हाई दिस रिप्रेजेंट्स एज x of t minus 1। सिग्नल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ, लेट इट बी x of t minus 1, isn't it? x of t minus 1, this is what is called as a delay operation, this is called as a delay। सिग्नल 1 सेकंड या फिर 1 यूनिट के बाद हो रहा है शिफ्ट, isn't it? वैसे ये बताओ ये कैसे रहेगा, इट इज x of t प्लस 1। +1 सिग्नल लेफ्ट में शिफ्ट हुआ +1, राइट में शिफ्ट हुआ, उल्टा है ना, एक राइट में शिफ्ट हुआ -1। दिस कॉल्ड एज अ एडवांसिंग ऑपरेशन। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपने 1 सेकंड से, 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया। दिस कॉल्ड एज अ एडवांसिंग, टाइम एडवांसिंग। दिस कॉल्ड एज टाइम डिलेइंग, दिस कॉल्ड टाइम एडवांसिंग। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जैसे प्लस और माइनस में, और वहीं पे ये जो है वो मार्क्स काट देते हैं। तो आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। राइट हैंड साइड पे हो रहा है डिले t minus 1, लेफ्ट की तरफ जा रहा है t plus 1। ओके, अभी और थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, इसकी तरफ यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये अगर छूट गया तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये छूट जाएगा। देखो यहाँ पे, अब हमने जैसे स्केलिंग ऑपरेशन एम्पलीट्यूड वाइज किया था, अब हम स्केलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं टाइम वाइज, है ना, टाइम वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं। मान लो कि मेरा वीडियो है 2 घंटे का वीडियो, कौन देखेगा 2 घंटे का वीडियो। तो हमने क्या किया, उसको फास्ट फॉरवर्ड किया, 2x पे चलाया। यूट्यूब में रहता है ना 2x का ऑप्शन। कोई अगर वीडियो नहीं समझा, तो कोई अगर वीडियो बहुत ही स्लो बता रहा है, यूजुअली मेरे वीडियोस जो है काफी स्लो होते हैं, तो बच्चे 2x पे चलाते हैं। तो 2x पे चलाने के लिए वो वहां पे ऑप्शन होता है 2x, 2x इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन विच यू कैन प्ले। तो ये हो गया 2x वर्जन। जो वैल्यू 2 पे है वो अभी कहाँ पे आएगी, 1 पे आएगी। जो वैल्यू 1 पे है वो कहाँ आएगी, 0.5 पे आ गई। मतलब कि हर एक टाइम जो है वो स्केल हुआ है 2 से, है ना। दैट मीन्स व्हाट, इफ दिस इज x of t, okay, if this is x of t, so the value that is there at t equals to t naught is now available at 2t equals to t naught. That means t equals to t naught by 2. So this is going to be x of 2t. कई बार लोग क्या करते हैं, t by 2 लिखते हैं इसको, जो गलत है। ओके, जो गलत है। यहाँ पे वैल्यू जो है, ये वैल्यू x of 0.5, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, 1 से आ रही है। सो आप अगर जब यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पे 0.5 होगा ना। देखो यहाँ पे x of t अगर ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x of t, देन x of 2t
is going to be what? Shrinked version. This is called as a shrinking time scaling. इसको बोलते हैं हम scaling, बोलते time scaling. ये important है, बहुत important है. यहाँ पे usually बहुत confusion होता है बच्चों को. This is called as x of 2t. x of 2t. x of t by 2 नहीं, x of t by 2 इसके बाद आ रहा है. देखो यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये आ गया x of t by 2, इसका ही भाई x of t by 2. इसको प्रूव करते हैं ना, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, देखो this is x of t. I'm saying that this is x of t to t means what? The value that was there at t equals to t naught is now present at 2t equals to t naught. That means, let's say, for example, a value that is present at t naught equals to 1. Now it is present at what? It is present at half. That means t, if it is 1, t naught equals to 1. Now it is present at what? T equals to 1 by 2. That means half. That's how it is called as x of 2t. Isn't it? 2t. Okay. अब ये जो है इसको वैसे ही वेरीफाई कर सकते हैं. The value that was there at t equals to t naught is now present at t naught by t equals t by 2 equals to t naught. That means what? T equals to twice of t naught. Therefore this signal gets stretched. ये सिग्नल जो है ये स्ट्रेच हो जाता है. इसको हम बोलेंगे t by 2. Okay, t equals t by 2. Okay. Yeah. Any difficulty till this point? समझ में आ गया ये? Any difficulty till this point? No, sir. Okay, तो ये देखो, ये हुई समरी. हम करते हैं अभी, हम इसके कुछ एक्टिविटीज लेते हैं. इसके पहले हम एक्टिविटीज ले. दिस इज सम मोर कॉन्सेप्ट्स. ओके, आई एम टेलिंग यू वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिपिंग. टाइम फ्लिपिंग का एक और कॉन्सेप्ट है जो बच चुका है, तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम फ्लिपिंग. अगर ये x ऑफ t है, हम क्या करते हैं, इसका उल्टा वर्जन लेते हैं, flipped version. Can anyone tell me how can I represent this? If this is x of t, this becomes what? X of what this becomes? Can anyone tell me what is this in terms of x of t? फ्लिपिंग कैसे हो रहा है? देखो हो क्या रहा है वो देखो. 1 जो है इसकी एम्पलीट्यूड ये क्या हुई? -1 हो गई. This value has become -1. So what is happening? Yeah. Anyone? Time reversing. No, it is not time reversal, it is amplitude reversal. Okay, there is a correction there. It is called as a amplitude reversal. time reverse हो रहा है क्या? टाइम वैसे का वैसे ही है ना. इधर फ्लिपिंग जो हो रहा है ये एम्पलीट्यूड वाइज फ्लिपिंग हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी. एम्पलीट्यूड निगेटिव चला गया. आप जो बोल रहे टाइम रिवर्सल वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं आईना रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं मिरर रखता हूँ, तो ये जो राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है. यस, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम रिवर्सल. अब हम कैसे लिखेंगे इसको? कोई बताएगा? अभी आप अगर बोल रहे हो इट इज टाइम रिवर्सल, दैट मींस व्हाटएवर इज देयर ऑन द पॉजिटिव इट विल गो ऑन द नेगेटिव, व्हाटएवर इज देयर ऑन नेगेटिव इट विल गो ऑन द पॉजिटिव. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइम रिवर्सल. इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको कैसे लिखेंगे? कोई बता सकता है यहाँ पे एक्स ऑफ टी के टर्म्स में? कौन बताएगा? व्हाट इज दिस? एनीवन? देखो क्या हो रहा है, टी निगेटिव हो गया है, मतलब क्या? एक्स ऑफ माइनस टी. माइनस एक्स ऑफ -2t मैम. नहीं नहीं नहीं, एक्स ऑफ -2t नहीं आएगा. एक्स ऑफ -2t कैसे रहेगा वो भी मैं बताता हूँ. एक्स ऑफ -2t कैसे रहेगा वो भी बताता हूँ. एक्स ऑफ 2t, पहली बात तो एक्स ऑफ टी जो है, एक्स ऑफ टी जो है ये था. एक्स ऑफ 2t कैसे रहेगा? ये श्रिंक हो गया, ये हो गया श्रिंक्ड वर्जन. श्रिंक्ड वर्जन मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज 0.5. This is x of 2t. x of -2t is the flipped version. Yes, देखो यही तो है important. आपके फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए. This is what is -1 and this is -0.5. This is x of
-2t। इन दोनों में फर्क है ना। ये सेम सिग्नल x ऑफ t, एक्स ऑफ सिग्नल को सिर्फ और सिर्फ पलटी मार के उल्टा किया हमने। जो 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 वैल्यूज राइट हैंड साइड पे थी वो लेफ्ट पे चली गई और लेफ्ट की राइट में चली गई। सो विल सिंपली राइट इट एज एक्स ऑफ -t। 2t क्यों आएगा? क्यों यहाँ पे भी तो 2 है ना, तो यहाँ पे भी तो -2 है। 2 का -2 चला गया, ये राइट का लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट का राइट में चला गया, खत्म। नथिंग डिफिकल्ट। Any difficulty till this point? This is flipping across the first one. Flipping is across the dependent variable. Flipping amplitude wise, amplitude wise पलटी मार के उल्टा, amplitude wise पलटी मार के उल्टा, पहला जो हमने देखा केस। और दूसरा वाला जो हमने देखा टाइम वाइज पलटी मार के उल्टा। ओके, टाइम वाइज मिररिंग। हियर इट इज एम्पलीट्यूड वाइज मिररिंग इन फर्स्ट केस, एम्पलीट्यूड वाइज मिररिंग, टाइम वाइज मिररिंग, एम्पलीट्यूड वाइज मिररिंग, टाइम वाइज मिररिंग। देखो फिर से बता रहा हूं, देखो यहाँ पे सब मिटा देता हूं। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर मैं मिरर रखता हूँ, कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर मैं मिरर रखता हूँ तो क्या हुआ? ये पलटी मार के उल्टा, एम्पलीट्यूड वाइज मिररिंग। अब मैं वर्टिकली अगर मिरर रखता हूं तो क्या ये हुआ? ये राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये वाला सेकंड केस। मिरर कहां पे रख रहे हो उसके ऊपर है, आईना आप कहां पे रख रहे हो उसके ऊपर है। सपोज यू कीप द मिरर लाइक दिस, इट बिकम्स -x of t। सपोज यू कीप मिरर लाइक दिस, इट बिकम्स x of -t। चेंज देखो ना आप, चेंज देखो कहां पे हो रहा है। चेंज जो है टाइम वाइज चेंज हो रहा है क्या? तो टाइम में चेंज कराओ अंदर में। एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट के बाहर चेंज करो। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट के अंदर कब चेंज करना है और आर्ग्यूमेंट के बाहर कब चेंज करना है वो देखना इंपॉर्टेंट है। और उसी के लिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, ये देखो। इसमें आपके पूरे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ये है मेमोरी मैप। एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ जो उसका कोएफिशिएंट है, टी का कोएफिशिएंट देखो। टी के कोएफिशिएंट में जो भी चेंज होगा, ओके, वो टाइम एक्सिस को अफेक्ट करेगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी चेंज होगा वो टाइम एक्सिस को अफेक्ट करेगा। ओके, ब्रैकेट के बाहर जो भी चेंज होगा, जो येलो में है, वो एम्पलीट्यूड वाइज अफेक्ट करेगा। Isn't it? वो एम्पलीट्यूड वाइज अफेक्ट करेगा। दैट मींस डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने पहले ही देखा कि अपशिफ्ट, अपशिफ्ट मतलब पूरा का पूरा सिग्नल को अपशिफ्ट, +c -c, अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट, है ना, हमने देखा। अब पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो हमने लेफ्ट में लिया फिर राइट में लिया। मतलब चेंज कहाँ हो रहा है? टाइम के अंदर या फिर टाइम के अंदर प्लस और माइनस हो रहा है। मतलब ये सिग्नल कहाँ गया? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। हमने देखा है कि टी माइनस समथिंग, वो सिग्नल का पूरा सिग्नल राइट में शिफ्ट करो, या फिर टी प्लस होता है तो लेफ्ट में शिफ्ट करो, है ना। उसके बाद हमने स्केलिंग का भी देखा। स्केलिंग में कैसे किया हमने? अगर सी जो है मतलब एक्स, सी इंटू एक्स ऑफ टी, जो भी हम वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, है ना, 2 से वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, 3 से वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, या फिर 0.1 से बढ़ा रहे हो, 0.2 से बढ़ा रहे हो, अगर ये 1 से बड़ा है तो ये एम्पलीफाई होगा। अगर ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब नॉर्मलाइज्ड है, तो ये श्रिंक होगा। और ये 1 है तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं होगा। दैट इज 1 इंटू एक्स ऑफ टी इज एक्स ऑफ टी ओनली। सिमिलरली दैट स्केलिंग इज हैपनिंग इन द टाइम डोमेन। ये देखो सी यहाँ पे बाहर था, यहाँ पे सी कहाँ है? आर्गुमेंट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। मतलब अफेक्ट क्या करेगा? टाइम अफेक्ट करेगा। मतलब उसका शेप पूरा का पूरा चेंज होगा ही होगा। मतलब टाइम का क्रॉस चेंज होगा। ये क्या होगा? 2x पे चला रहे हो या फिर 0.5x पे चला रहे हो, ये क्या हो रहा है? वॉल्यूम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन। यहाँ पे स्पीड अप एंड डाउन। वीडियो, यूट्यूब का वीडियो याद रखो। वॉल्यूम बढ़ाना है 2 इंटू एक्स ऑफ टी, 3 इंटू एक्स ऑफ टी, है ना, c इंटू एक्स ऑफ टी। स्पीड बढ़ानी है x ऑफ 2t, x ऑफ 0.5t एंड सो ऑन। एक बहुत ही फास्ट बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं? स्लो पे चलाते हैं यूट्यूब का वीडियो, तो हम x ऑफ 0.5t चलाते हैं उसको,
एक्स ऑफ 2t नहीं चलाते, 2t बोल तो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा फिर, तो उसको यही बोलते हैं, एक्सपांड करते हैं हम वक्त को, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफ, वो 0 to 1 के बीच में रहेगा। वैसे हमने फ्लिपिंग ऑपरेशन देखा है, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी, फ्लिपिंग अक्रॉस द वर्टिकल एक्सिस एंड फ्लिपिंग अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। ये सिग्नल जो है, अगर ये ऐसा है तो दूसरा सिग्नल क्या होगा, फ्लिप वर्जन। फ्लिप वर्जन कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और इस केस में क्या होगा, अगर ये सिग्नल ऐसा है तो ये ऐसे होगा। अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी टिल दिस पॉइंट? ठीक है, समझ रहा है? यस जैसे सर। इसकी तरफ ध्यान में दे लो, पूरा का पूरा रिवीजन ले लो फटाफट। अभी वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1 आवर, थोड़ा सा हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, इसको पहले समझ लो, ये पूरा का पूरा अपन ने अब तक के जो देखा है, पूरी की पूरी समरी जो है वो इसमें है ना। वो ब्रेक में आपको अकेले थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं, आपको कुछ एक्टिविटी दूंगा। कुछ एक्टिविटी देखो ये क्या है, देखता हूँ मैं कौन ये एक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाता है। ओके, आप खुद ही लिखिए, है ना। आपको अगर ये एक्टिविटी सब आ गई तो आप समझ लेना ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया है। तो ये एक्स ऑफ टी है, आपको माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी ड्रॉ करना है, दोनों जगह पे माइनस। टाइम भी रिवर्स करना है और एम्पलीट्यूड भी रिवर्स करना है। देखो कैसे करते हैं, पलटी मार के उल्टा। ये हो जाने के बाद बताओ, मैं दूसरा एक्टिविटी देता हूँ। अब जिनको ये आता है ना, जिन लोगों को समझ में आ रहा है ये, तो वो क्या करेंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे। ये देखो, ये सॉल्यूशन भी बता दिया मैंने, एक्स ऑफ माइनस टी का। दूसरा जो है आप ये ट्राई कर सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी माइनस टू, तीन तीन बार माइनस। कहीं पे भी ये चेंज, शेप चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, एक्स ऑफ माइनस टी माइनस एक्स, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी माइनस टू। और सबसे चैलेंजिंग अभी जो है, जिनको मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है, दे कैन जस्ट लुक अहेड फॉर सम मोर चैलेंजिंग स्टफ। अगले दो एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्या आप देख सकते हैं वो। सॉल्व करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप ही का फायदा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप ही का नुकसान होगा। करो। ये एक्टिविटी और चैलेंजिंग है।
आप नोट कर लो पहले प्रॉब्लम्स, है ना? Books you won't get such kind of problems. Okay, we design these problems specifically. Solution. Okay, we'll start in 1 minute. Okay, 1 or 2 minutes. Okay, 2 minutes break. All right, so let's begin. Okay. See, we have seen so far quite important things of manipulation of signals, isn't it? हमने इसके पहले सिग्नल्स जो है वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऊपर नीचे, सब देख लिया। उसके ऑपरेशंस को ही हम बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ओके, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका साइनोसॉइड्स का। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में साइनोसॉइड्स अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर जो है वो सिग्नल्स, साइनोसॉइड्स में एनालॉग एंड डिजिटल साइनोसॉइड्स, है ना, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट आते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म्स, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन सब के कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये साइनोसॉइड्स जो अच्छी तरीके से समझ जाएगा उसको सिग्नल्स एंड सिस्टम समझ गया, ये ऐसा समझेंगे। तो साइनोसॉइड जो है इट इज अगेन सिग्नल, कि इट्स इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिग्नल्स। हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है 230 वोल्ट की, वो साइनोसॉइड होती है 50 हर्ट्ज की। तो दैट सिग्नल और दैट साइनोसॉइड इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंट एज समथिंग लाइक दिस। तो इसके तीन मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी साइनोसॉइड जो है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? एक्स ऑफ टी, इज इट अ सिग्नल? यस, इट्स अ सिग्नल, क्योंकि हर एक वैल्यू जो है वो डिफाइंड है। एट एनी पॉइंट, at any point you can have one value. Now x of t, how can I represent that? X of t, let's say for example it is a cosinusoid. Okay, it's a cos function or it may be a sine function also. So it has three parameters. एक तो है उसका amplitude, okay, एक तो है उसका
peak amplitude. A यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे in this case the A is 1. In this case this A is 1. Peak amplitude, okay, peak amplitude is nothing but this represented by A here. उसके बाद वो फंक्शन जिसका फंक्शन है वो cos, then it is 2 pi f t plus theta. There are three parameters here. एक तो है उसका amplitude, another is the frequency. That means एक सेकंड में कितनी साइकिल्स आ रही है. In 1 second how many times it is repeating. Cycle in the sense from the starting point it is going down, then it is going the lowest peak and then it is coming back to the upper peak. तो इसको बोलते हैं हम पीक टू पीक, है ना. एक पीक से आया, नीचे गए, वापस उसी पे आया. तो ये वन पीक टू अनदर पीक, पीक टू पीक जो है डिस्टेंस जो है ये होगा वन साइकिल. दिस कॉल्ड वन साइकिल. सो इन 1 second हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी. Okay, so any sinusoid can be represented as a into cos 2 pi f t plus theta, where f यहाँ पे constant क्या है, 2 pi is a constant, cos is a function, a is also a constant, a is an amplitude. So there are only three parameters that is left: the peak amplitude a, then there is a frequency that is f, and there is a theta that is called as a radian, that is the phase. Okay, so all the argument, that means like cos of something plus something, so that something is called as a phase. Okay, so if there is a signal, okay, now these sinusoids come in the class of periodic signals. ये signals जो है वो periodic होते हैं, एक समय के बाद repeat करते हैं. मतलब क्या कि एक पॉइंट पे ये है तो दूसरा पॉइंट जो है वो आएगा ही आएगा, कितने तो भी समय के बाद आएगा, कोई टाइम के वक्त आएगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फंडामेंटल पीरियड. किस पीरियड के बाद? इट इज द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू. ओके, मार्क माय वर्ड्स, इट इज द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर व्हिच द सिग्नल रिपीट्स. How can you calculate that? It is simply the inverse of the frequency. That means 2 pi by this omega naught. Omega naught is this 2 pi into f naught. Okay, it is called as the fundamental period. Okay, inverse of frequency is called as a fundamental period. Fundamental period matlab the minimum positive value. Okay, minimum, it should be minimal, it should be positive. Minimal positive value after which the signal repeats is called as a fundamental period. और इसके ऊपर भी गेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं. So we were talking about this periodicity. Periodic signals can be represented by something like this. So any signal x of t is said to be periodic if it repeats. X of t is equals to, if it repeats after every integer multiple of the fundamental period. That means x of t plus k times whatever that is, fundamental period, t or t naught, whatever you want to say. And that must be true for every value of t. That must be true all the time. This is for all t, for all the time. This should be, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिग्नल जो है वो रिपीट तो हो गया उसके बाद रिपीट ही नहीं हो रहा है. This is not a periodic signal. This is not a periodic signal. Why? It is repeating not always. Okay, so this t plus t naught, x of t, if it is equals to x of t plus t naught, मतलब एक समय के बाद वो वही वैल्यू अगर आ रही है, x of t is equals to x of t plus some integer multiple of t naught, that means this is the fundamental period. After 1 t naught, after 2 t naught, 3 t naught and so on, it is called as a periodic signal. Okay, तो कोई भी सिग्नल को हमको पीरियोडिक चेक करना है तो ये कंडीशन है पीरियोडिसिटी की. और ये साइनोसॉइड्स तो पीरियोडिक है ही, दैट वी कैन प्रूव सिंपली. मतलब अगर हमको प्रूव करना है कि साइनोसॉइड पीरियोडिक है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ले लेंगे x ऑफ t. क्या है x ऑफ t? a cos 2 pi f naught t plus theta. और हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? x ऑफ t मस्ट बी इक्वल टू x ऑफ t प्लस t naught. x ऑफ t प्लस t naught क्या आएगा? a cos 2 pi f naught t plus t naught. मतलब क्या? ये this is equals to a cos 2 pi f naught t plus 2 pi f naught t naught. And we know what is f naught t naught. F naught is equals to 1 upon t naught. या फिर t naught equals to 1 upon f naught. So this gets cancelled. This gets cancelled means what?
what is remaining? This is equals to x of a equals to cos of 2 pi f naught t plus theta. It's the same thing. So what is this? X of t plus t naught. Isn't it the same? This equation 1 and equation 2, they are the same. These are the same. Therefore, the sinusoids are periodic signals. Therefore, sinusoids are periodic signals. Now, let me give you some example. Okay. If it is a periodic signal, then there should be a period to it. Okay. Now, take your pen and paper and see if this signal is periodic or not. X of t equals to cos of 10t. बताओ ये periodic है या नहीं? अगर ये periodic है तो उसका period निकालो. Can anyone tell me quickly? Is it periodic first of all? See if it is periodic or not. How you can check? Does it repeat? Yeah, can anyone tell me the period? First of all this continuous time cosinusides and sinusoids, they are all periodic. Okay, you can just verify that with t equals to t plus t naught, because this t naught is that fundamental frequency that you can always calculate. See here, what is this? This is omega naught, right? Omega naught है ना, 2 pi f naught या फिर 2 pi f naught कितना है ये? 10. मतलब f naught क्या हुआ? F naught equals to 5 by pi, isn't it? 5 by pi. या फिर t naught क्या हुआ? Pi by 5, isn't it? Is it okay? Now you can just always prove that x of t plus t naught कितना हुआ? बोलो. Cos of 10 into t is what? T plus pi by 5. See, in gate the speed is important. Okay, so in gate we won't be calculating this, with this trivial maths. Okay, we'll be going with the thumb rule. Continuous time है क्या? So it is always periodic. Cosinusides है क्या? Continuous time. Cos signals are periodic, not all the signals. Okay, now you can just verify that. How you can verify? हमको याद नहीं रखना है, हम verify कर सकते हैं. What is this? Cos of 10t plus what is this? 2 pi. What is this? Equals to cos t, cos 10t. One वही बात. It is क्या? X of t plus t naught. Is this equals to x of t? Yes, it is equals to x of t. Means what? This signal is what? Periodic. So we'll now declare that this signal is periodic. Periodic with what period? What is the period of this? This period is t naught equals to pi by 5. This is the period. Is it clear? Simple, very simple. अभी ये कौन बताएगा? देखो, second example. Is it periodic? First of all, prove that it is periodic, and you let me know what is the period. Let me see who answers this first quickly. What is the period of this? What is the period of this? Can anyone tell? Calculate करो फटाफट. How to calculate? Just equate this signal with the standard equation. What is the standard equation? X of t equals to a cos omega naught t plus theta. So now you can calculate omega naught. What is omega naught? Can anyone tell?
Let me see who can answer that. Abhishek, can you tell me what is omega naught in this? Pranali, Kunal, anyone? Okay. Ankita, Hema, Kunal, Mamta, Pranali, Pratik, Savita, Shashank, Shivani. Can anyone tell what is the omega in this? Yeah? No one? Yeah, hope my voice is audible. Am I okay with my voice? Is my voice audible? Yes, sir, you are. Yes, sir. Okay, so can you guys tell me what is this omega here? Is it that difficult? It's the simplest. What is this omega is nothing but this coefficient of t. What is that? Omega naught. It is 1. So what is this t naught? T naught is what? 2 pi by omega naught. Isn't it? What is that? 2 pi. That is a period. Simple. Omega naught is 1. So it is 2 pi f naught is 1. That means f naught is 1 upon 2 pi, or this t naught, which is the inverse of f naught, it is 2 pi. Simple. Now can anyone tell me about this? इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं गेट में, ठीक है? What is the fundamental period of this signal? What is the fundamental period of this signal? Sine pi by 3t. क्या करना है? Simple. Technique is very simple. You just need to look at the coefficient of t. What is the coefficient of t? Pi by 3. What is that? That is omega naught. Pi by 3. Pi Isn't it? by 3. Yeah. So what is now t naught? Can anyone tell me? What is t naught then? What is the fundamental period? Is this signal periodic? Yes, it is periodic. With what period? What is this period? Fundamental period. T naught is omega by 2 pi. Just 2 pi से divide करो, कितना हुआ? Divide this omega naught by 2 pi. How much is the period? 2 pi. 1 by 6. So 1 by 6, this omega. So in fact, that is the frequency. So it is 6, right? This 2 pi, this t naught. How much is t naught? T naught is this 2 pi by omega. So that is what is 6, isn't it? Yes, sir. Yeah. Okay. Now can anyone tell me about this? This is more challenging. Now there are two sinusoids. अब इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो गेट में पूछे जाते हैं. दो सिग्नल्स है, एक छोड़ के दो सिग्नल्स है. हम पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं. इसमें दो सिग्नल्स हैं, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, दो सिग्नल्स हैं. हर एक इसका इंडिविजुअली हम पीरियड कैलकुलेट करते हैं. पहले का पीरियड क्या है? ओमेगा नॉट कैलकुलेट करते हैं. ओमेगा नॉट कितना है? पाई बाय 3. इसका ओमेगा नॉट कितना है? ओमेगा 1 जो भी बोलेंगे कितना है? ओमेगा नॉट कितना है यहाँ पे? पाई बाय 4. तो इसका पीरियड कितना हुआ? टी नॉट 6 आएगा. हाँ. इसका कितना हुआ बताओ? 8 है ना? 8. तो एक बोल रहा है कि नहीं भाई पीरियड जो है वो 6 आएगा, दूसरा बोल रहा है कि नहीं भाई 8 आएगा. तो किसकी सुने? एक बोल रहा है कि मैं 6 के बाद रिपीट करूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं 8 के बाद रिपीट करूंगा. तो इस वक्त क्या करना है, हमने दोनों का जो पीरियड है उसका हमने जो है रेशियो लेना है ना? वी टेक द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम, इजंट इट? फर्स्ट तो क्या करो, पहले तो उनका रेशियो ले लो. रेशियो मतलब क्या? मान लो कि ये टी नॉन, लेट्स से दिस बी t1, ओके, लेट इट बी t2, ओके. तो t1 by t2 कितना हुआ, है ना? t1 by t2 कितना हुआ? 6/8.
T2/T1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका जो है हमने ये पहली बात तो रैशनल होना चाहिए, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों का जो है रेशियो होना चाहिए। अब इसमें कैसा है कि आप कॉमन फैक्टर जो है वो आप हटा सकते हो ना, यू मस्ट nullify the common factor. So 2 3s are 6, 2 4s are 8. Now we can't. Okay, so it is 3 going to by be 4. 3 by 4. Now you can just merely take this. So the period, the fundamental period is going to be either cross multiply then 4 times t1 या फिर 3 times t2. So it is going to be 4 times t1 या फिर 3 times t2. अब अपने को t1 भी पता है, t2 भी पता है, हमने इसको t1 बोल दिया था, इसको t2 बोल दिया था, है ना। तो कितना हुआ, कितना हुआ पीरियड बताओ अभी। Either you take 4 times t1, that means 24, या फिर you take 3 times t2, that is also 24. So it has become 24 is the period. So the fundamental says, okay, that if there are two sinusoids, तो individual periodicity check करो, okay, पहले वो individually periodic है क्या वो check करो। अगर दोनों में से एक भी periodic नहीं है तो entire signal is non periodic। अगर दोनों periodic है तो दोनों के periods निकालो, okay, you calculate both the periods, take the ratio, subtract the, you remove the common factor, okay, or you can simply, I'll just tell you the simplest technique, you just take the least common multiple of, you take the LCM of t1 and t2, okay, ऐसे तीन भी रहे तो LCM of t1 t2 t3 ले लो। So you calculate the least common multiple of t1 and t2. What is the least common multiple of 6 and 8? Okay, so you can do that. So why it is least common multiple and all that concept I'll tell you based on that graph, but always remember this. So what to remember? So देखो यहाँ पे I'll show that graphically also. ये जो बड़ा सिग्नल है ये ऊपर, that is a kind of a signal that is repeating after 6. Okay, this is having the period as 6. Okay, this is repeating quite late, and this small signal is repeating quite quickly because this small component is also here. Okay, so this entire signal is repeating after what, after certain time. So this is kind of a दोनों मिलके बनाया हुआ signal है। Okay, this is like both the signals are repeating after certain time. Okay, so this is another example. Okay, I'll just tell this signal later on, but this is an example where the signals are repeating after some fixed instance of time, that is a LCM of both of them. So what you need to do is you need to remember this thing. If there are multiple signals, check for individual periodicity. Okay, if there are multiple signals, check for individual periodicity. If both are periodic, then only we can go for calculation of periodicity, or we need to calculate the fundamental period. Okay, if not we have to just make it as a, if both of them are not, if one of them is non-periodic, then it becomes non-periodic signal. Okay, so just a minute. Okay, so this was a concept of periodicity. Okay, periodicity of multiple signals. अभी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, this is done. Okay, yeah, this one. Can anyone tell me what is the period of this signal? Remember the steps. You need to check for individual periodicity. You need to calculate the period of this, you need to calculate the period of that, and then you have to check.
See the steps. What is the step? First, check for individual periodicity. Okay, if both are periodic, then check the ratio, and this ratio must turn out to be a rational number. T1 और T2 का रेशियो जो है वो इंटीजर होना चाहिए. इट मस्ट बी रेशियो ऑफ टू इंटीजर. जैसे इस केस में T1 और T2 का रेशियो जो है वो 3/4 मिला है हमको. इट शुड बी रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. ओके, इट शुड बी अ रैशनल नंबर. अगर वो केस नहीं है, देन यू कांट say that signal as a periodic. For example, in this case, what is this omega 1? Okay, what is this omega naught or omega 1 here? This one, it is pi by 3. Okay, not this one, we are taking different example. Where is that? Yeah, this one. What is this omega 1? It is under root of 3. Root 3. Yes. And what is omega 2? It is 1. 1. So what is this T1? 2 pi by root 3, isn't it? What is this T2? 1 upon 2. Sorry, it's 2 pi. This is 2 pi, pi. right? 2 pi. So what is this T1 by T2? What is this T1 by T2? 1 upon root 3, isn't it? T1 by T2 is 1 upon root 3. Is it a rational number? What do you mean by rational number? Rational number matlab ratio of two integers. Is it ratio of two integers? No, this is irrational. This is not a rational number. Therefore, this signal is not periodic. This signal is not periodic. Not periodic. This signal is not periodic. Okay, this is how you have to just check it. Okay, whether the signal is periodic or not. The signal is not periodic. You try plotting it, it won't. We won't get exact repetition of values. It may be close. You won't get exact repetition. It may look like a periodic signal, but it is not. Okay, you may intend to declare that as a periodic signal, but it is not mathematically. Okay, now take this example. Is it periodic? Can anyone tell? This again, this is what? This is a periodic signal. Okay, this is a periodic signal. How you can check it? You can just simplify this. Sine square t is 1 minus cos 2t by 2. DC signal. This DC signal, this period is undefined. Okay, this is what? Some constant. For constant, the period is undefined. You don't need to worry about this. Okay, what you need to worry about is only the non-constant signals. And we know what is this. What is this? Omega. Omega is 2. Omega naught is 2. So what is T naught? T naught is Pi. very good. So that becomes what? The fundamental period. So this signal is periodic with period T naught equals to, or with fundamental period equals to pi. अब आप बोलोगे बहुत हो गया भाषण, आप अपने को गेट के प्रॉब्लम्स कुछ तो बताओ. तो ये हुआ गेट का क्वेश्चन. Okay, why I'm taking these many numerical practice problems? Because in GATE it has been asked recently, GATE 19, same question. देख सकते हो. Okay, you search f of t equals to twice of cos pi t plus thrice of sine 2 pi by 3 plus 4 times cos of pi by 2t plus pi by 2. सवाल ये था कि उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है. व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस? व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड? अब इसको देने के लिए हमने फंडा क्या है, फंडा हमेशा याद रखना है. डीसी सिग्नल का तो कोई पीरियड ही नहीं होता है. इट इज अनडिफाइंड. व्हाई? बिकॉज इट इज इनफाइनाइट. इन फैक्ट इट इज अनडिफाइंड. डीसी का पीरियड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके,
ये डीसी सिग्नल या फिर कांस्टेंट जो होता है उसका पीरियड जो है, डीसी सिग्नल मतलब क्या, वन। वन क्या है, वन मतलब कांस्टेंट सिग्नल। इट कैन बी पीरियोडिक आफ्टर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन फैक्ट इट इज अनडिफाइंड। ओके, तो इसको हमने ध्यान में नहीं रखना है ना, डीसी सिग्नल को भूल जाओ। कांस्टेंट ऑन दिस वन, इसका क्या है, व्हाट इज t1, 2 पाई बाय पाई, मतलब क्या, 2, t1 इक्वल्स टू 2। दूसरे का कैलकुलेट करो, t2, t2 बताओ फटाफट, एक्टिव रहो फटाफट। EC signals, EC student should be spark. Okay, very fast and quick answer. What is T2? Anyone? ये ओमेगा को देखो, 2 पाई बाय ओमेगा कितना हुआ, 3 sir. वेरी गुड। सो T1 is 2, T2 is 3, ये क्या हुआ बताओ फटाफट, T3 is 4, बताओ फटाफट। What is the fundamental period T0 for this signal? अभी बताया हमने। पहली बात तो ये चेक करना है कि ये तीनों के तीनों इंटीजर है क्या भाई। Is T1, is to T2, is to T3, are these individually periodic? Yes, they are periodic. The ratio is a rational number. So now we can calculate the fundamental period, which is simply the LCM of 2, 3 and 4. बताओ ये least common multiple क्या हुआ? It is simply 12. So this is what? 12. Okay. सबसे कम मल्टीपल 2, 3 और 4 का कौन सा है, 12। तो ये हुआ फंडामेंटल पीरियड। ओके, इसी के ऊपर थोड़ा सा इन्वर्स करके क्वेश्चन आया था गेट 2013 में। ये गेट 2013 में ये सवाल आया था, सिमिलर क्वेश्चन। उन्होंने फंडामेंटल टाइम ना पूछते, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ ली और कुछ नहीं, मतलब उसका सिर्फ इन्वर्स ही करना था। ओके, बट डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। सो आप ये इंडिविजुअल ले लो 100 का जो भी ओमेगा नॉट क्या आया, सो ओमेगा 1 हियर इज 100, यह क्या हुआ 300, ओमेगा 2 इज 300, ओमेगा 3 हियर इज 500। तो इसका रेशियो क्या हुआ, रेशियो की जरूरत ही नहीं है अभी, है ना। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑन ऑल जस्ट बिकॉज दे हैव आस्क्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। So directly take the highest common factor of this, so that is nothing but the 100. So you simply need to take this highest common factor of this 100, 300 and 500, which is nothing but the 100. So that is the fundamental frequency. Fundamental frequency, frequency के लिए CF है ना, पीरियड के लिए LCM कैलकुलेट कर लो, खत्म। We can go in a different way also. Okay, we can calculate the time period and then calculate the frequency, it's fine. Okay, so that is what is the concept of the periodicity of sinusoids. Okay, periodicity of sinusoids. Now अभी हम आते हैं कुछ और important concepts की तरफ। Okay, 4 हो गया, 5 का है। Okay, now whatever the sinusoids that we have seen so far were all continuous time, isn't it? They were all continuous time. Now let's go for discrete time. Okay, discrete time में मतलब क्या, n रहता है। अभी सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट कैसे मिलता है, हम सिग्नल को काट के उसको डिस्क्रीट बनाते हैं। मतलब क्या, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफ टी हमने साइनोसॉइड्स को कैसे डिफाइन किया था, हमने साइनोसॉइड्स को ऐसे डिफाइन किया था, देखो a cos 2 pi f t plus theta. Always remember this definition of cosinusoids or sinusoids. Okay, there are 3 parameters a, f and theta. मतलब ये जो सिग्नल है, now we want the discrete equivalent of it, उसके हम टुकड़े पाड़ेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम टुकड़े गिराएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए काटा, ये यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। सो वी आर कटिंग द सिग्नल, वी आर कटिंग द सिग्नल। ये ऐसे काटा, यहाँ पे काटा। तो ये क्या हुआ, जो सिग्नल टी था, जो सिग्नल कंटिन्यूअसली अवेलेबल था, अभी वो कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं है, वो थोड़े थोड़े इंस्टेंस पे अवेलेबल है। लेट्स से पहला 1 टाइम्स टी, लेट्स से 2 टाइम्स टी, 3 टाइम्स टी, 4 टाइम्स टी, मतलब ये जो गैप है, दिस इज टी। this gap is, let's say for example, very small, what is called as the sampling duration is ts. So it is available at every integer multiple of this sampling duration. Okay, हम काट रहे हैं उसको, सैंपल कर रहे हैं, है ना, ये सिग्नल को हम सैंपल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। वी आर टेकिंग सिग्नल्स आफ्टर एवरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ सैम्पलिंग ड्यूरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैथ्स कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे x of t is now converted as t is replaced by n into ts. What is this ts? सैम्पलिंग ड्यूरेशन, कितना फ्रीक्वेंटली हम सैंपल कर रहे हैं, 1 मिलीसेकंड के बाद, 2 मिलीसेकंड के बाद, 3 मिलीसेकंड के बाद, तो n मिलीसेकंड, n टाइम्स 1 मिलीसेकंड के बाद, n 2 टाइम्स 1 मिलीसेकंड के बाद, 3 टाइम्स 1 मिलीसेकंड के बाद। तो यहाँ पे ts क्या हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 मिलीसेकंड। That is what is t being replaced by n times ts, n times ts. Now how is the mass changing here? Instead of t, I'll write it as nts. So ts is nothing but sampling period, and inverse of that is nothing but sampling frequency. Okay, so how is this mass changing? A cos 2 pi f by fs, and this we will indicate as small f. स्मॉल एफ क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कैपिटल एफ बाय, अब ये नोटेशंस चेंज करते हैं, चेंज होते हैं, बुक्स टू बुक्स वेरी करते हैं, सो आई यूजुअली प्रीफर दिस नोटेशन. दिस इज एनालॉग, एंड आफ्टर दैट, आई मीन, दिस इज कंटिन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी, साइनसॉइड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस स्मॉल एफ इज डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइड फ्रीक्वेंसी. सो इसकी जो रेंज रहती है वो हमेशा 0 to 1 में वेरी होती है, इनफैक्ट -0.5 to 0.5 वेरी होती है. So this omega naught, which was 2 pi capital F earlier for continuous time, now it has become small omega naught equals to 2 pi small f, which is the discrete, okay, discrete time sinusoid ka frequency. Okay, this is the max. Okay, so you need to just observe if a signal, if a discrete signal, if it is periodic, you need to check whether this small f, okay, is in that range or not. Okay, so the funda remains here. It again, the fundamental remains the same. Okay, if you need to check whether a signal is periodic or not, instead of t we have n here. Okay, so it must, after certain samples, now I'll use that one, after certain samples, let's say n naught, it must repeat. So x of n must be equals to x of n plus n naught for plus or minus, okay, for all the values of n. हर वक्त पे हर सैंपल के लिए वो रिपीट होना चाहिए. अगर मान लो कि ये वैल्यू ऐसी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 2 and 3, and after that it must repeat for every sample 1 2 3 1 2 3 and so on. This is a periodic signal. Same funda, okay, this is one period, second period, the third period. We are applying this period, the funda, to the sinusoids. So here we are applying that. Now see how it gets. So we will get now the condition of periodicity of the discrete time signals. What does it say? It says that this f must be a rational number. Small f must be a ratio, must be rational of two numbers. Okay, it should be a rational number. Okay, so for periodicity of discrete signals, the small f must be a rational number. Okay, small concept here, as you can see it here, it must be a rational number. Let's see an example. A signal shown on the screen,
Okay, is it periodic? Signal shown on the screen, is it periodic? Just solve it. Okay, check and solve. Solve it. How to solve it? Just check small f. What is omega here? Omega नॉट क्या है? 0.4. मतलब f क्या हुआ? What is f? F is 0.4 by 2 pi. That means what? 0.2 by pi. Is it a rational number? Is it a rational number? Is it a rational number? It is not, isn't it? It is not a ratio of two integer. Therefore, ये दिख रही है periodic, पर ये periodic नहीं है. This is not a periodic signal. It is not a periodic discrete time signal. Why? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ये सिग्नल कैसे वेरी हो रहा है. ये हर एक वैल्यू एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो रही है. आप यहाँ पे ध्यान दो. ये देखो ये वैल्यू जो है यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे देखो बड़ी है, यहाँ पे देखो उससे भी बड़ी है. रिपीट नहीं हो रही है वो. सिमिलरली ये वैल्यू देखो यहाँ पे, ये दूसरे कलर से बताता हूँ. ये वैल्यू देखो, ये वैल्यूज देखो यहाँ पे ऊपर नीचे. So this signal is not periodic, although they appear to be like in loop. Okay, repeating but not exact values are repeating. हम periodic तभी बोलेंगे जब वो सिग्नल exactly वही वैल्यू रिपीट कर रहा है. तो मान लो कि ये पीक वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल 1.9 के आसपास, 0.97 के आसपास है, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0.98 के आसपास होगी, पर एग्जैक्टली नहीं होगी वो. अगर ये एग्जैक्टली नहीं है तो हम पीरियोडिक हम उसको नहीं बोलेंगे. दिस सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक. फंडा क्या है? स्मॉल एफ मस्ट बी रैशनल फॉर दैट टू बी पीरियोडिक. एग्जाम्पल और ले लो. अब ये सिग्नल एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है. देखो यहाँ पे मिलिट्री के जैसे. देखो इसके बाद ये रिपीट हुई हो रहा है. देखो एग्जैक्टली दिस पीक्स आर एट 1. Then we predict that this signal is periodic. This must be periodic. ये प्लॉट करके मैं बताया इसमें MATLAB में ये प्लॉट करके दिखाया हुआ है. but you can mathematically prove it. You don't need to plot it. What you need to do, you need to just see what is omega. What is omega? Omega is coefficient of n. What is that? 0.2 pi is nothing but this omega, small omega. So this, what is this small f? Small is divided by 2 pi. What is that? 0.1. 0.1 is simply 1 by 10. It is a rational number. It is a rational number. It is having, we can consider this is what? F by fs, no? So f by fs. That means what? These many number of cycles per samples are there. In one cycle, there are 10 samples. Mark my words. See here, important. कोई बताएगा नहीं. देखो यहाँ पे एक साइकिल में, one cycle. In one cycle, there are 10 samples. चेक कर लेते हैं हम. देखो यहाँ पे एक साइकिल कहां से कहां तक होती है? पीक से पीक. हम पीक से पीक गिनेंगे. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. यहाँ से तो रिपीट ही हो रहा है ना. यहाँ से रिपीट. In one cycle there are 10 samples, and that's how the ratio turns out to be a rational number, and therefore this is periodic. What is the period? What is the period? 10 samples is the period. 10 sample के बाद वो repeat हो रहा है भाई, है ना. Simple. 10 samples is the period. हम इसको क्या कर रहे हैं? देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको slowly vary कर रहा हूँ. इसका और एक एग्जांपल लेते हैं. देखो मैं ये f जो है वो स्लोली वेरी करता हूँ. देखो ये कैसे वेरी हो रहा है. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 2 मिनट में ये कवर कर रहा हूँ, है ना. इंपॉर्टेंट है इसलिए कवर कर रहा हूँ. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलियासिंग का.
अलियासिंग मतलब दो डिफरेंट सिग्नल्स एक करके एक्ट करते हैं. हायर फ्रीक्वेंसीज मैप टू लो फ्रीक्वेंसीज is what is the concept of aliasing. Okay, two signals appear with the same frequency. That is the concept of aliasing. Okay. फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिग्नल ले लो, यहाँ पे ये सिग्नल ले लिया. देखो एफ जो है यहाँ पे 0 है. मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, 0.2 कर रहा हूँ, 0.4 कर रहा हूँ, 0.6 कर रहा हूँ, 0.8 कर रहा हूँ और फिर 1 कर रहा हूँ. पर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 0 और 1 ये तो एक जैसे दिख रहे हैं. देखो 0.2 और 0.8 ये भी एक जैसे दिख रहे हैं. 0.4 और 0.6 ये भी एक जैसे दिख रहे हैं. मतलब क्या, यूनिक आपको फ्रीक्वेंसीज मिल नहीं सकती. यूनिक फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ आपको 0.5 के रेंज तक ही मिल सकती है. दैट मीन्स इफ यू वैरी दिस एफ फ्रॉम 0 to 1, you will get the unique frequencies only till 0.5. Others are aliased version of 0 to 0.5. That means the unique range of f की रेंज क्या है? यूनिक रेंज is from -0.5 to 0.5. इनफैक्ट 0.5 ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी. -5 तो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए. पॉजिटिव में ओनली टिल 0.5 इट इज देयर. Rest of them are all aliased frequencies. Okay, rest of them are all aliased frequencies. So this concept can be seen from here. ये ग्राफ से मैं कवर कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे 0 to 0.5 यूनिकली वो प्लॉट कर रहा है. 0.6 जैसे हो सकता है. जैसे 0.6 होता है तो 0.6 acts as a 0.4. 0.6 acts as a 0.4. 0.7 acts as a 0.3, -0.3. 0.8 act as a -0.2. 0.9 act as a -0.1 and so on. ये देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया था. यहाँ पे प्लॉट देखो. 0.5 के बाद 0.6 acts as a 0.4. ओके, माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं. Then 0.8 acts as a 0.2 and so on. So unique range. So that's why I'm saying the unique range of the frequencies, the unique range. Continuous time में कोई range नहीं है. Continuous time is ranging from -infinite to infinite. Okay, but discrete time में ये restriction आ जाता है. Okay, क्या restriction है? Small f, it is from -half to half, and omega is of course from -pi to pi. That is the funda, and that's how now we are comfortable to calculate is this periodic or not. Okay, this discrete में फिर से एक example ले लेते हैं. Okay, what is this omega 1 here? This omega 1 here, omega 1, small omega 1, it is pi by 3. That means f1 is, now we are taking the example of two discrete sinusoids. Okay, two discrete sinusoids. So what is this f1? It is 1 by 6, or this is n. This is 1 by fs, f by fs. So we can also calculate as number of samples. So this is n, number of samples. It is n1 is 6. Similarly here, what is omega 2? It is pi by 4. What is this f2? It is 1 by 8. Therefore n2 is 8. The first signal is repeating after 6 samples, the other is repeating after 8 samples. So what is the fundamental period of this? How it is repeating? So fundamental period, and not here is again simply the LCM of this 6 and 8 here. That is nothing but 24. So the signal must repeat after 24 samples. That is the fundamental period of this sinusoid. Okay. All right. So we have covered several concepts here. Okay, we have covered the manipulation of signals. We have covered, the concept of analog and digital. We have covered the fundamentals of sinusoids, analog and digital, the continuous and discrete. We have covered some gate examples. We have also covered multiple sinusoid frequency, detection, and so on. We have covered several concepts. Okay. We also covered some, as I said, some gate problems.
And now after that, there are some topics that we can cover regarding the systems and all, additivity, homogeneity, and also there's several things that has to be covered. Okay. Again, the time paucity, we can't cover all of them, so we may cover some of them if another instance is provided. But yeah, so there are several topics that we can cover, but time being, I think the time paucity is there and we should stop here. So if you are having some questions till this point, you can just let me know, and then maybe like we can just resume. Yeah, any doubts till this point? Any doubts? Hello? Hello. Sir, I don't think so that student having any doubt regarding Okay. this. Okay. Okay. Fine. I thanks Dr. Ankit Purakas for conducting such informative session on signal and system. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you so much. Dear student, you can left.